Now in this session we will see how to implement the given functions using programmable logic array. Now PLA, what is it? PLA is a type of PLD in which both AND gate and OR gate are programmable. Okay, that means I can modify the terms across AND gate as well as OR gate. That is called as the programmable. So if I want to implement this function f1 f2, we have few product terms. In case of f1 we have three product terms, a bar b, a c bar, a bar b c bar, और f2 में है a bar c b इंटू c bar. तो सबसे पहले तो हम इन प्रोडक्ट टर्म्स को जनरेट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द थ्री वेरिएबल्स. आई विल बी राइटिंग, here it is the line for a, this is for a bar, this one is for b bar, this is c, and this one is for c bar. So you have taken all the input lines with its complement also. Now let's come across the first product term. It is a bar b. So I need one AND gate. It will be like this. Similarly for this one, again we'll be taking AND gate, and for this one also we'll take that AND gate. Now we'll fuse the terms. Here we need a bar का लाइन ये है, so we'll connect a bar from here, b from here. Similarly a c bar, a c bar, और इस वाले में देखिए a bar b और ये है c bar. तो जो टर्म्स है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस एंड गेट, और इसका जो भी आउटपुट आ जाएगा दैट वी हैव टू कनेक्ट टू द और गेट. ओके, ये तो हो गया f1 के लिए. सिमिलरली हम f2 के लिए लिखेंगे. लेट्स ड्रॉ, this is another AND gate and this will be probably the last one. So let's mark the terms a bar c. तो देखिए a bar यहाँ से आ रहा है, we'll fuse it a bar, second is c, और ये वाला है बी सी बार. तो यहाँ से हम लेंगे b और यहाँ से कनेक्ट करेंगे c बार को. Now the last term is we have to add all those terms. So we need programmable OR gate. Here it is. Okay, now the terms for f1 are a bar b. ये वाला है a bar b, we'll fuse it. This is a c bar, fuse a bar b c bar, fuse किया दिया. Similarly we'll take another OR gate and we'll fuse it as a bar c. देखिए यहाँ से आ रहा है a bar c, और ये है b c bar. तो ये हो गया f2. And now this becomes our implementation using programmable logic array. Here AND gate is programmable as well as OR gate is programmable. Now in the same fashion you can draw the programming table also, where again we have to show which terms are present, which terms are absent, which are complementary, which are uncomplementary. Okay, now we have the second question, implement the given functions using programmable logic array. तो इस वाले एग्जांपल में डायरेक्टली एक्सप्रेशन नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन में. तो उसके लिए देखिए f1 इज इक्वल टू दिया है समेशन माइन टर्म 0 1 2 4. सो यहाँ पर 4 टर्म है और यहाँ पर लास्ट है 7. हमें तो पता है वेन एवर इट एक्सिड्स 3 तो हमें 3 वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है. व्हेन इट एक्सिड्स 7 वी हैव टू यूज़ 4 वेरिएबल. तो यहाँ पर लास्ट है 7, यूज़ ए 3 वेरिएबल के मैप with inputs a b c. So let's draw a 3 variable. Here we'll be drawing a 3 variable के map. Here input is a, यहाँ पर है b c. This is for f1. Now let's place the terms which are present. So we have the terms as 0 1 2 4, 0 1 2 and 4.
सो दिस टर्म्स आर प्रेजेंट, उसको हमने मार्क कर लिए. नाउ लेट्स गो फॉर मैपिंग. लेट्स स्टार्ट विथ 0. 0's adjacent is 1, so we can form a pair between 0 and 1. तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा f1 इज इक्वल टू, इसके लिए देखिए ए वैल्यू 0 है यानी ए बार, और इन दोनों में से हम ये फर्स्ट 0 कॉमन निकाल सकते हैं जो कि है बी बार. तो ये आ जाएगा ए बार बी बार प्लस नेक्स्ट 2 और आप देख सकते हैं 0 एडजेसेंट होता है, सो 2 और 0 का एक पेयर हो सकता है. इसका भी इक्वेशन देखिए 2 0 हॉरिजॉन्टल है तो इसके लिए यहाँ से आ जाएगा ए बार, और 2 और 0 के लिए यहाँ पर 0 0 यहाँ पर 1 0, यानी सेकंड 0 हम कॉमन निकाल सकते हैं जो बिलोंग करता है सी बार से. तो ये आ जाएगा सी बार प्लस नेक्स्ट 0 और 4 का एक पेयर हो सकता है, सो देयर इज अ पेयर बिटवीन 0 एंड 4. सो फाइनली एक्सप्रेशन देखिए 0 4 तो वर्टिकल है, यहाँ से ए बार यहाँ से ए यानी 1 आता है. सो यहाँ से तो हमें मिलेगा बी बार इंटू सी बार. ये हो गया F1. सिमिलरली we'll fetch it for F2. Again we have to draw 3 variable की map. Let's mark the terms which are present 0 5 6 7. So you can see 0, here it is 5 6 7, these are marked. Now let's check whether pair can be formed. So for this term adjacent term तो कोई नहीं है तो ये आ जाएगा isolated. तो सबसे पहले हम लिखेंगे F2 इज इक्वल टू, इसके लिए देखिए सर ए का वैल्यू 0 है यानी ए बार, और यहाँ पर 0 0 यानी बी बार सी बार प्लस. नाउ इसके लिए ये एक पेयर हो सकता है, ए का वैल्यू 1 है यानी ए है, और यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं सी प्लस इन दोनों का भी एक पेयर हो सकता है. तो अगेन आ जाएगा ए इंटू, यहाँ से देखिए ये वाला निकालेंगे हम कॉमन, सो इन दोनों टर्म में बी कॉमन निकलेगा, सो आ जाएगा बी. सो वी गॉट ए बार बी बार सी ए बी. तो ये हो गया F1 एंड F2. नाउ लेट्स गो फॉर द लॉजिक डायग्राम. वी नीड 3 वेरिएबल्स, सो आई विल बी ड्राइंग a set of 3 inputs. A, this is A bar, B bar, और ये वाला हम कंसिडर करेंगे C बार. ये आ गया. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट. F1 इज इक्वल टू देखिए ए बार बी बार है, सो यहाँ से हम एक लाइन कनेक्ट करेंगे एंड गेट. सेकंड प्रोडक्ट टर्म के लिए एक एंड गेट लेंगे, और ये वाला हम कंसिडर करेंगे फॉर थर्ड प्रोडक्ट टर्म. सो F1 के लिए अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट टर्म से ए बार बी बार बी बार, ए बार सी बार, और थर्ड वाले के लिए देखिए बी बार सी बार है, बी बार इंटू सी बार. तो ये तो हो गया हमारा F1 के लिए. विल एक्सटेंड द लाइन्स. This is a regular structure. Okay. Similarly, for F2 again we are having 3 product terms, so I need 3 AND gates, which will be in a format like this. A bar B bar C bar. So let's mark A bar B bar C bar, A C, ये वाला है A P. Okay, now we have to add them. So let's take line from here, जहाँ पर देखिए ए बार बी बार सी बार सी बार का टर्म ऐड करना है. तो ये 3 टर्म्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला होता है ए बार बी बार, ये है ए बार सी बार, और ये है बी बार सी बार. सिमिलरली इस एंड गेट का इनपुट देखिए ए बार बी बार सी बार है, तो ये आ जाएगा ए बार बी बार सी बार, ये वाला है ए इंटू सी, और ये वाला है ए इंटू पी. अब सेकंड टर्म के लिए भी हम ऐड करेंगे विद द टर्म्स ए बार बी बार सी बार ए सी ए बी.
अब इन सभी को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2. So this becomes our implementation using programmable logic array. Okay, so where both are programmable, AND gate as well as OR. Okay, thank you.